Hello everyone, I am Deepika and today we're going to do The Fairy Queen, which has been written by Edmund Spenser, and we're going to discuss Cantos 1 and 2 from book 1. In the video, I am going to critically analyze the entire Cantos 1 and 2, and we will see what exactly is happening, the story as well in Cantos 1 and 2. So let's get started. Here, first of all, let us have a look at the important points. Allegory, I have already mentioned in one of the videos wherein I have discussed about Fairy Queen. I have told you that how it is an allegory, as in all the characters, places, and events happening in the Fairy Queen, they all are symbolic, as in they are teaching us something. They represent more than their actual name or the event or the person. For example, here Red Cross Knight is the main character, the protagonist of these cantos or book 1. But he is not just Red Cross Knight. He is here representing holiness, and the woman who's been traveling with him in the first two cantos called Una, she's representing truth. So what exactly is the Fairy Queen? It's an allegorical epic or allegorical book wherein all the characters, all the events and places are representing much more than what they actually are. Here the Fairy Queen is Gloriana, referring to Queen Elizabeth. Fairyland here refers to England. Here he is criticizing Roman Catholic Church and their faith because he himself was a Protestant. So here we'll have a look at how through characters he is doing so. So we have explained the allegory point, and here I've already told you all these 4 points. These are the 4 characters which you have to remember. First 2 characters are positive, the next 2 are negative. Red Cross Knight and Una, I've already told you, represent holiness and truth respectively. Archimago and Duessa. Archimago, if you see his name, it's Archimago, image. So how here Spenser is using this name or character to criticize Roman Catholic Church and their belief, because they believed a lot in images. Unlike Protestant, Duessa here represents someone who is wrong faith, false faith, or does not have any faith. So they both are negative characters. Also, one more important point, Red Cross Knight का नाम Red Cross Knight कैसे पड़ा? You must have seen a picture in a slide before this, wherein on your right hand side there was this one picture wherein a man was standing with a shield in his hand, and उस shield पे एक cross बना हुआ था. So that cross was made with blood. So that's how blood's color is red, and cross because there was a cross on the shield, so that's how he's got his name, Red Cross Knight. How does the story start? We've been told that Queen of Fairyland, who's Gloriana, she's given him a task to fight a terrible dangerous dragon. तो इसी पूरी की पूरी फाइट के लिए इसको कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए, लड़ने के लिए रेड क्रॉस नाइट निकलता है विद ऊना, अ ब्यूटीफुल यंग इनोसेंट लुकिंग गर्ल. वो जाता है. उसके बाद जैसे ही वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, थोड़े टाइम बाद स्टॉर्म शुरू हो जाती है, आंधी शुरू होती है. तो वो जल्दी से अपने लिए ढूंढने के लिए, कोई कवर करने के लिए अपने आप को जगह देखते हैं फॉरेस्ट में, और उनको एक जगह मिलती है. उसके कुछ देर बाद जब स्काई पूरा क्लियर हो जाता है, व्हेन द स्टॉर्म स्टॉप्स, दे रियलाइज कि वो रास्ता भूल गया, उन्हें नहीं पता उन्हें यहाँ से कहाँ जाना है. उसके बाद उन्हें एक डेन ऑफ एरर दिखती है, और उस डेन ऑफ एरर में रेड क्रॉस नाइट एंटर कर देता है. अब एरर का मतलब तो ऑब्वियसली क्लियर है, दैट्स इट्स समथिंग डेंजरस. तो वहां पे उसका मुकाबला होता है एक टेरिबल बीस्ट से, लेकिन रेड क्रॉस नाइट उसको डिफीट कर देता है और बाहर निकलता है, और फिर से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है. रास्ते में उन्हें एक हर्मिट मिलता है, और हर्मिट उन्हें ऑफर करता है कि वो उनके साथ रह ले रात में, क्योंकि अब रात हो चुकी है, वो कहाँ आगे ट्रैवल करेंगे. रेड क्रॉस नाइट अग्री कर जाता है. उसके बाद हमें थोड़ी देर में बताया जाता है कि जो हर्मिट है वो एक्चुअली में हर्मिट नहीं है. इट्स आर्चिमागो हु इज द ब्लैक सॉर्सरर, मतलब ब्लैक जादूगर जिसको बोलते हैं. उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रियल आइडेंटिटी को छुपाकर इन लोगों को बोला कि वो अपने यहाँ पे रोक दे, और ताकि वो उनके साथ गेम खेल सके. अब आर्चिमागो अपने ब्लैक जादू को यूज करके व्हाट डज ही डू, ही कॉल्स ऑन 2 स्पिरिट्स, मतलब 2 स्पिरिट्स को बुलाता है, और उनमें से दोनों स्पिरिट अपना डिस्गाइज, अपने आप को दूसरे तरीके से दिखाते हैं. मतलब डिस्गाइज मतलब अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा के दूसरी आइडेंटिटी लेते हैं. एक तो लेता है शेप ऑफ ऊना,
जो हमारी ये कैरेक्टर है who's been traveling with the night, and the other one takes the dream, obtains the false dream from Morpheus, the god of sleep. जैसे हम बोलते हैं ना सूर्य देवता, वैसे इनके भी गॉड्स होते हैं डिफरेंट तरीके के, और वो एक गॉड ऑफ स्लीप से एक और फॉल्स ड्रीम ले लेता है इसको दिखाने के लिए, नाइट को दिखाने के लिए. अब जब नाइट उठता है, रेड क्रॉस नाइट, उसको एकदम ही कंप्लीट सी गेटअप इन पैशन, क्योंकि ये जो स्पिरिट होता है वो उसको ड्रीम दिखाता है लव और लस्ट का. अब जब वो पैशन में उठता है, वो अपने सामने एकदम लेटा हुआ देखता है ऊना को, who is lying beside him and she is offering him a kiss. लेकिन रेड क्रॉस नाइट उसको एकदम रेजिस्ट करता है, he restrains all of it, all the temptations, और still goes back to sleep. उसके बाद आर्चिमागो को लगता है एक और कुछ ट्राई करना पड़ेगा, बस इससे तो रेड क्रॉस नाइट डिसीव नहीं हुआ. So now, जो spirit disguise हो रखा है ऊना की तरह, he makes that spirit lie in bed with another spirit, और उस दूसरे spirit को एक young man का पूरा disguise कर देता है. Now आर्चिमागो रेड क्रॉस को उठाता है, and when Red Cross wakes up, he sees these two lying together in the bed, and he gets very angry because he thinks that it's Una, and how can she sleep with another man? और इस गुस्से में वो सुबह जब उठता है, he leaves Una behind and starts off his journey. When Una gets up, she realizes that there is no Red Cross Knight anywhere, और उसको मतलब बहुत दुख में, एकदम सौरों में, she starts off her journey ढूंढने के लिए किसको, रेड क्रॉस नाइट को. और इस बात का एकदम फायदा उठा के आर्चिमागो रेड क्रॉस नाइट का पूरा अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, फिर से अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा के, एंड ही स्टार्ट्स फॉलोइंग ऊना. अब इस बीच में क्या होता है, रेड क्रॉस नाइट जब चल रहा होता है, उसको एक और नाइट दिखता है आगे, whose name Sensfoy. Now Red Cross Knight and this Sensfoy Knight, they both fight, और उस छोटे से बैटल में Red Cross Knight wins. So now Red Cross Knight starts to travel with this lady who was Fidessa traveling with Sensfoy. तो अब ये दोनों जब ट्रैवल करने लगते हैं, साथ में चलते हैं, रेड क्रॉस नाइट फील्स लिटिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, और उसको बोलता है दैट ही इज गोइंग टू प्रोटेक्ट हर. और ये दोनों अपनी जर्नी शुरू करते हैं, और इन दोनों को थोड़ी देर में रियलाइज होता है कि सन बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, इट्स वेरी हॉट एंड दे शुड टेक सम रेस्ट अंडर द शेड ऑफ सम ट्री. तो रेड क्रॉस नाइट रेस्ट करने के लिए रुकता है उस लेडी के साथ, और एक ट्री की ब्रांच को काटता है. सडनली वो ट्री बहुत जोर से पेन में चिल्लाता है, और उस ट्री की जहां से उसे काटा होता है वहां से खून निकलने लगता है. रेड क्रॉस नाइट बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और शॉक्ड हो जाता है, उसे लगता है हाउ कैन अ ट्री ब्लीड. उसी दौरान ट्री स्टार्ट्स टू स्पीक एंड टेल्स इट्स स्टोरी, और वो बताता है कि किस तरीके से वो ट्री जो था वो एक टाइम पे इट वाज अ मैन कॉल्ड फ्रोडूबियो, एंड ही हैड अ ब्यूटीफुल लेडी जिसका नाम था फिलिसा. वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे, और रास्ते में उसको एक नाइट मिला जिससे उसने फाइट की, और उसकी जो लेडी थी जो उस नाइट के साथ थी, वो अब ट्रैवल करने लगी फ्रोडूबियो के साथ. फ्रोडूबियो की जो लेडी थी फिलिसा, जो उस नाइट की लेडी थी, उसने उसको ट्री में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि फ्रोडूबियो से वो इतनी अट्रैक्टेड थी, उसको चाहती थी वो पूरा का पूरा उसे मिले, और उसकी जो ब्यूटीफुल लेडी थी उसको एक ट्री में कन्वर्ट कर दिया. और फ्रोडूबियो को पता चलता है वो जो लेडी थी वो एक्चुअल में डुएसा थी, जो कि इविल विच है इन कैंटोस में. और डुएसा जब एक बार नहा रही थी, दैट्स व्हेन फ्रोडूबियो रियलाइज दैट शी इज वेरी अगली, एंड ही ट्राई टू रन अवे. और जैसी वो भागने की कोशिश कर रहा था, तभी डुएसा ने उसे भी ट्री में कन्वर्ट कर दिया. सो दैट्स हाउ दे बोथ गॉट कन्वर्टेड, ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रीज. और ये स्टोरी सुनने के बाद फिडेसा जो थी वो बेहोश हो गई, शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस, क्योंकि फिडेसा ही डुएसा है. लेकिन रेड क्रॉस नाइट ये कनेक्शन फॉर्म नहीं कर पाता जो ट्रीज को स्टोरी बताता है उसके बीच में, और ये जो उसकी फाइट होती है सेंसफॉय के साथ उसके बीच में, और वो फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है डुएसा के साथ. सो दिस वाज अबाउट इट. इस पूरी की पूरी कैंटोस में यही थी कि किस तरीके से रेड क्रॉस नाइट जो होलीनेस रिप्रेजेंट कर रहा है, और किस तरीके से ऊना जो है वो ट्रुथ है. अगर एक क्रिश्चियन मैन अगर उसका ट्रुथ, उसका फेथ रियल नहीं होगा, ही कांट गो एनीवेयर. सो सिंबॉलिक मीनिंग यही है कि यहाँ पे रेड क्रॉस नाइट को डिसीव करने की कोशिश की गई आर्चिमागो का प्लान सक्सेसफुल हुआ, और ऊना उससे अलग हो गई. तो किस तरीके से क्रिश्चियन बिलीफ ऑफ फेथ, जो उसका फेथ है, उसको यहाँ पे अलग कर दिया, और डुएसा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है
फॉल्स फेथ, मतलब आपका धोखा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ड्वेसा, और सेंसफॉय का मतलब है नाम का फेथलेस। तो किस तरीके से ये दोनों के, ड्वेसा और सेंसफॉय के साथ ये पूरा पूरा बैटल है, और जो रेड क्रॉस नाइट अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, अब वो बेसिकली फॉल्स फेथ के पूरा सराउंडेड है, क्योंकि ऊना जो ट्रुथ था, जो एक्चुअल फेथ था, वो उससे अलग हो गया है। तो किस तरीके से ये फाइट शुरू होती है यहाँ पे, एंड हाउ ही इज गोइंग टू अचीव हिज होलीनेस एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर कैंटोस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ तक सब कुछ समझ आया हो। इफ यू डिड लाइक द वीडियो, kindly like it, share it with your friends, subscribe to my channel, do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Thank you for watching. Much love.